Shri T.V. Kapali Shastriya, he not only suggested immediately, without much delay, he did his best to get those big books to Dr. Kashyap and also guided him how to approach these books. Because the ideas are new, the way of expression is new, and the understanding and approach also should be new. So Dr. Kashyap started studying the secret of the Veda. As he has made the statement, it took about 5 years for him to study the secret of the Veda and to understand certain things. Then he studied the Siddhajana, which is in Sanskrit translation, but it has a elaborate preface which will help everybody to understand the secret meaning of the Vedas or the Veda mantras. After that, he wanted to also he did the comparative study of other translations. All of we know that Sri Aurobindo has translated about 3,000 plus mantras of the Veda. So he wanted to study, or he wanted to do a comparative study of Sri Aurobindo's translations and the translations done by the Indian scholars and the Western scholars. Another 10 years he devoted his time to understand and study all these interpretations. So after 14 or 15 years of putting his best efforts in understanding the Veda, he finally decided that only interpretation or the only teachings of the Vedas should be read and followed by Sri Aurobindo's translations. Then the next step he took is that he wanted, so Sri Aurobindo had translated only these 3,000 or 4,000 mantras from the Rig Veda. Kapali Shastriya also did not touch other 3 Vedas. But people will be asking, what is Sri Aurobindo's approach to other Vedas? Rig Veda, Yajurveda, Atharva Veda, Sama Veda. What the only Rig Veda has got the spiritual meaning, whether other Vedas don't have it. So his first decision was to translate all the available 25,000 mantras in the light of Sri Aurobindo's interpretation of the Ruks. So he sat at a place, he put his best efforts for 14 years, working at least 15 to 16 hours a day, and he translated all the mantras and published it in English. So that was the text, translation in the light of Sri Aurobindo, and notes to wherever it is necessary. He gave the notes using the books of Sri Aurobindo, A.B. Purani, M.P. Pandit, and Sri Kapali Shastriya. In that way, so the preservation of the Vedas, that means not the preserved, Vedas are preserved. Vedas are preserved by so many traditionalists. We have several Veda Patashalas and universities like CSU, all is been done. So preservation of Veda means preservation of the Vedic knowledge. The core of the Veda knowledge should be preserved. From that point of view, he translated those mantras and published, and also all over the world, anybody who is interested can access these mantras, meaning and the notes for the Veda mantras. So why preservation was necessary? All of us know that if we go back around 50 years, we could find more than 1 lakh mantras. But today we have 25,000 plus mantras only, because we know that the Vedic tradition is an oral tradition. The system was the Guru should teach, the student should learn, and again he should teach to his scholars who have assembled here. So my concern is that there should be some center wherein this study and research work should be started meticulously and with great interest. I am very happy to share with you that in Bengaluru, in the name of Professor R.L. Kashyap, we would, yes, 1 minute I will conclude. We are planning to start a Vedic center, the International Vedic Center, in the memory of Dr. R.L. Kashyap, where
we are planning to create all the facilities for the scholars to come to study, stay and teach. So we should come out with a consensus that yes, this is the core of the Veda and this is how it needs to be taken to the masses, and this is the process to inculcate or follow the Veda or the live Veda. So this center will be open, the work is being now started, and from this platform I request all the scholars to cooperate with this institute, and as our Devendraji has joined his hand, with his own interest he came and he invited and he started publishing. Now they are reaching, and I request all the scholars in one or the other way, we are all definitely interested to involve in this work. Only thing is that there should be some point where we all gather and do this noble work. I think the center which is going to start in Bangalore will invite all of you to explore the further ideas to take it to the globe. And I need not have to convince this audience that Vedas are necessary. I am quite sure that all the scholars assembled here definitely will join their hands with me with the background that Vedaha Swasti, Vedas are auspicious. So if somebody asked me the question, why should we take Veda globally, means Vedaha Swasti. Vedas are auspicious, and there is no one who says that I don't want anything auspicious. There can't be a single individual who can say that I don't want peace of mind. There can't be an individual who says that I don't want to enjoy the life, celebrate the life. Ultimately, Vedas teach in and out the celebration of the life. So let us be ready to celebrate the life in the light of the Vedas. And the four powers of the mother in Sri Aurobindo's life. सुदृम्भमाणात्पुटं जाग्रस्वप्नसुप्तिभासकतया सर्वप्रिया दिव्यति सा देवी जगदम्बिका भगवती श्रीराजराजेश्वरी आनन्दमानन्दम् श्रीनाथादिगुरुत्रयं गणपतिं पीठत्रयं भैरवं सिद्धोगं वटुकत्रयं पदुगं दूतीक्रमं मण्डलं वीरान्तष्टचतुष्कषष्टिनवकं वीरावली पञ्चकं श्रीमन्मालिनी मन्त्रराजसहितं वन्दे गुरोर्मण्डलं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः वन्दे गुरुपदद्वन्द्वम् अवाङ्मनसगोचरं रक्तशुक्लप्रसान्निष्टं प्रतर्क्यं ते ब्रह्म नारायणं पद्मभूमवसिष्ठं शक्तिं तत्पुत्रप्रार्थनीच व्यासं सुखं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रं श्रीशङ्कराचार्यमतास्य पद्मपादं सहस्तामलकं तं तोटकं वार्तिकारमन्नादस्मद्गुरुं सन्ततमानतोऽस्मि। आज की इस संगोष्ठी में उपस्थित जो मैं सामने जो भी विद्यमान है, सब में गुरुत्व दिख रहा है, सब मेरे सीनियर हैं, ज्ञान में भी बुद्धि में भी। पर मुझे रेणुका जी ने जो कहा था इसके लिए मैं कुछ देर में आपके पास बात रखता हूँ। ये जो आज का जो विषय है मेरा, उस विषय में अरविंद के पूर्ण योग दर्शन की निगमागमीय मूलाधार विज्ञान, अरविंद का पूर्ण योग क्या है और उस पर अरविंद ने वेदों में क्या लिखा है। दोनों विषय मैंने अरविंद को भी इतना नहीं पढ़ा और वेदों को मैंने नहीं पढ़ा। पर अब इसमें जो बात थी कि उनका पूर्ण योग है क्या, पहले किसी ने पूर्ण योग नहीं लिखा। जितने भी योग हमारे सामने उन्हें पूर्ण योग नहीं आता है। हमारे योग के चार भेद थे कि एक उसमें था कि भी हठ योग है, एक मंत्र योग है, एक पातंजल योग है और एक राजयोग है। चार योग माने गए थे, चार योग है। ये पूर्ण योग कहाँ से है? तो ये पूर्ण योग क्या है, उसकी क्या वैदिक पृष्ठभूमि है? वेदों में से निकला है या आगमों से निकला है? निगम से या आगम से, किससे पूर्ण योग आता है? इस प्रश्न पर मुझे विचार करने के लिए कहा था। उसी में मैं संक्षिप्त रूप में कह देता हूँ कि पूर्ण योग जो है वेदों का जो शांति पाठ है, पूर्णमदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, कि तो पूर्णता की अवधारणा है। पूर्णता में ही सुख है, अल्पता में सुख नहीं होता है। पूर्ण हम कैसे बने? हम जब पूर्ण बन जाएंगे तो हम पूर्ण आनंद को प्राप्त करेंगे। तो पूर्ण आनंद हमें कब मिलेगा? उसके लिए क्या रास्ता होगा? संसार का उद्देश्य पूर्ण आनंद को प्राप्त करना है। उसके लिए अरविंद जी ने अपने पूरे दर्शन को पढ़ा
अरविंद जी का जो दर्शन मैं जो समझता हूँ कि उनका दर्शन वो पूरे तरह से पाश्चात्य दर्शन से प्रभावित है। अरविंद जी का जो दर्शन है उन्होंने पूरे पाश्चात्य दर्शन को अच्छी तरह से उन्होंने समझा है, और क्योंकि उनका जो अध्यापन हुआ वो उन्होंने पाश्चात्य पद्धति से पढ़ा। उनके पिताजी खुद एक दार्शनिक के शिष्य थे और उन्होंने हिंदुस्तानी दर्शन नहीं पढ़ा, उन्होंने पश्चिम के दर्शन से अपना विद्या अध्ययन किया। और बाद में अरविंद जब भारत आते हैं तो उनमें जो परिवर्तन होता है उसमें कई परिवर्तन हुए, और उसके बाद में उन्होंने एक तरह से वैदिक दर्शन की ओर चले गए। क्यों चले गए? तो कहते हैं कि जिस तरह हम देखते हैं भागवत के अंदर कि प्रहलाद जो थे, प्रहलाद का जो ज्ञान था वो राक्षसों जैसा नहीं था। ऐसा उनके गुरु कहते हैं कि ये तो विद्यार्थी है, अलग तरह का विद्यार्थी है, ये जैसे असुर बालक होते हैं वैसा नहीं है। वैसे ही एक तरह से ये मान सकते हैं कि अरविंद पूरे जीवन उसको पढ़ा, उसमें से वो कैसे निकल गया है और कैसे इधर घूमे, तो ये बड़ा एक अद्भुत कार्य हुआ और एक अद्भुत कार्य उन्होंने किया। और वो उस दर्शन को पढ़ करके, उसको समझ करके और उसको मानते हुए भारत की ओर कैसे आ गए। इसमें ये दो बातें हैं इसमें कि पश्चिम का जो दर्शन है वो, इसमें दो बातें होती है। प्लेटो के अनुसार दो दर्शन होते हैं कि एक तो इंद्रिय जगत है और एक वस्तु जगत है, विज्ञान जगत है। इंद्रिय जगत हम देख रहे हैं ये असली नहीं है, विज्ञान जगत असली है। उनका दर्शन दो बातों में चलता है। हमारा भारतीय दर्शन जो है उसको पतंजलि ये कहते हैं कि हमारा भारतीय दर्शन तीन आयाम में चलता है। तीन आयाम क्या है? तो कहते हैं एक तो आधिभौतिक है, एक आधिदैविक है और एक आध्यात्मिक है। शायनाचार्य इसी तीन को मानते हैं कि तीन तरह का हमारा दर्शन होगा। वेद शब्द क्या है? तो वेद शब्द जो है, वेद का अगर वो शब्द माने, ये शब्द ही है, शब्द ब्रह्मणे निष्णाता परम ब्रह्मादि गच्छति, तो शब्द जो है वो लिखे गए संहिताओं में। आप संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, ये वेद राशि कहलाती है। पतंजलि ने उनका उल्लेख किया कि पतंजलि महाभाष्य में कहते हैं शब्द वेद क्या है, तो कहते हैं कि शब्द जो है वो कहते हैं 9 तरह का अथर्ववेद है, 21 तरह का ऋग्वेद है और 100 तरह का यजुर्वेद है, और उनका कि सस वर्तमान सामक वेद है। ये वेद है, ये वेद को हम शब्द वेद कहते हैं। एक तो ये शब्द वेद है। दूसरा वेद क्या है? तो वेद का अर्थ है कि तो मनु कहते हैं कि तस्मात् भूतंत भव्यंत सर्वम वेदात् प्रसिद्धति, कि भूत, भव्य और भविष्य ये तीनों वेद से निकलेंगे। क्या पुस्तक से निकलेंगे? वो वेद अलग है, उसे हम कहते हैं आधिदैविक और आध्यात्मिक। तो तीन तरह की व्याख्या सायण अपने भाष्य भूमिका में करते हैं। एक वेद का स्वरूप शब्द रूप है, शब्द के बाद दूसरा स्वरूप क्या है? वो अर्थ के रूप में है। शब्द से जो निकलता है वो अर्थ होता है। जैसे परमात्मा ने सृष्टि की तो आकाश संभूत, आकाश वायु, वायु अग्नि, तो इस तरह से कहते हैं कि वो जैसे जैसे उनका भू थी, पहले भू कहा भू पैदा हो गई, भू का भू पैदा हो गया, स्वर का स्वर पैदा हो गया। तो उस तरह से वेदों से सृष्टि हुई, जिसे शब्द सृष्टि का सिद्धांत कहते हैं। शब्द सृष्टि के सिद्धांत से जो भी अर्थ है, जिस शब्द का जो अर्थ है वो शब्द का दूसरा भाग है जिसको हम कहते हैं व्यवहारिक जगत है। हर शब्द अर्थ से जुड़ा हुआ है। शब्द के कितने अर्थ होते हैं? शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। शब्द के बहुत होते हैं, जितने तरह आप अर्थ कर सकते हैं। वेद के भी आप जितने तरह अर्थ निकाल सकते हैं। तो किसी भी शब्द का कोई भी अर्थ निकाला जा सकता है, कोई अर्थ फिक्स नहीं है कि ये अर्थ है। शब्दानाम अनेक धातुनाम अनेक अर्थत्व, कि शब्द के जो धातुएं हैं उनसे अनेक अर्थ निकल सकते हैं। किसी भी शब्द का आप कोई भी अर्थ निकाल सकते हैं। तो जितना ये चराचर जगत है, दृश्यमान जगत है, वो अर्थ जगत है। उस अर्थ जगत को भी वेद कहा जा सकता है। तीसरा जगत है ज्ञान जगत। तो ज्ञान जगत में जब आते हैं तो ज्ञान जगत में जो हमें ज्ञान हो रहा है, इस वस्तु को लेकर के, इस वस्तुआत्मक जगत को लेकर के जो हमारे अंदर ज्ञान होता है, ज्ञान जगत कहलाता है। इन तीनों जगत के उदाहरणों में हमारे दार्शनिकों ने तीन तरह के मार्ग आए, एक द्वैत, एक अद्वैत और एक विशिष्टाद्वैत, अनेकांतवाद। मानी द्वैतवाद, अद्वैतवाद और अनेकांतवाद। इन तीनों दर्शन जो हमारे भारत में विकसित हुए, अलग अलग लोगों ने इस पर सबने विचार किया कि तीन तरह के दर्शन हैं। एक द्वैतवादी दर्शन है, एक अद्वैतवादी दर्शन है और एक अनेकांतवादी। अब इन तीनों दर्शनों में जो बात कही गई, वो बातें हम जब समझने लगते हैं तो उसमें बहुत से आयाम होते हैं। पश्चिम के दर्शन में एक ही सत्य होता है कि जो भी सत्य है तो नाम मानी शब्द, शब्द का रूप है पूर्ण विश्व। तो पूर्ण विश्व शब्द का अर्थ है। इसके रूप में उन्होंने कहा कि आद्यम प्रेम ब्रह्म रूपम माया रूपम तत्वद्वयम। तो माया जो रूप है उसके दो है, माया उसे कहेंगे शब्द और उसका अर्थ, यानी जगत, शब्द जगत, अर्थ जगत, ये माया रूप है। और ब्रह्म जो उसकी व्याख्या नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? इसकी व्याख्या हम इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि ब्रह्म शब्द का बीज है, उसकी व्याख्या हम कैसे करें? ब्रह्म की व्याख्या करना संभव क्यों नहीं है कि किसी ने भी नहीं की।
वहाँ वेद भी नहीं पहुँचते ब्रह्म की व्याख्या में, पुराण भी नहीं पहुँचते। क्यों नहीं पहुँचते? तो वो कहते हैं कि आचार्य शंकर कहते हैं प्रातस्तुवे परशिवाम ललिता भवानी त्रय्यंत वेद विभाम करुणानवद्याम विश्व सृष्टि विलय हेतुभूता विद्येश्वरी सकल मनसा दूरम। कि वो जो परम तत्व है वो अव्याख्या क्यों है? वेद उसकी व्याख्या नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? वो तत्व इसलिए नहीं होता उसकी व्याख्या कि वो उसमें सब कुछ है। उसकी भावरूप व्याख्या भी संभव नहीं है और उसकी अभावरूप व्याख्या भी संभव नहीं है। भावरूप व्याख्या इसलिए संभव नहीं है कि संसार की सब चीजें उसी का विवर्त है। जो भी हम देख रहे हैं वो सब ब्रह्म में होगा, और अभाव से व्याख्या करें तो भी उसकी नहीं होती है, क्योंकि वो तत्व आता ही है। वो केवल साधना और योग के द्वारा गम्य होगा। योग के द्वारा गम्य करने के लिए उन्होंने ये बताया हम अपनी वृत्तियों को रोकें और उसके बाद जाए। इसी के साथ में आपको धन्यवाद दूं। धन्यवाद। I'm blessed to be in the presence of this august company. I will be representing two institutes. Number one is Medam Foundation of Pondicherry, and the second is the Center for Research in Medam, in this Center for Hindu Studies. One second, sorry. As he wishes. Fine. Nahi, chalega. As he wishes. No problem. Everybody will have to turn. I mean, everybody will have to turn. If I go there, is it? Yes. Thank you. But I think you can ask Vishnu Prasad. The whole setup has to be. Let me continue. I think. All right. So maybe you can look at a slide here. It is nothing important on this side. Yes, please. So Center for Hindu Studies, Pingla Institute, Sydney, and Vedant Foundation. I am a Shishya of Sri Madhusudan Damleji. Our Vedant Charitable Trust is doing research on Vedic chant since 2014. We have done research with neurologists, geneticists, and we have actually been very fortunate that we got some results which proved that the effect of Vedic chanting has resulted in hormonal changes in children. Our aim is to make it standardized, because we have come across lots of parents of children with special needs who have been looted in the name of we are giving you special mantra to transform your child. People are paying when they are very parent want 10% change, 4% change in my child is also sufficient. And so they are giving mantras for 10,000 rupees. This mantra, it did not work. Now you have to go for advanced therapy. New mantra, new package. This is very bad, and this has to be worked in such wonderful institutes here who are working for promotion of Sanskrit. We request, we have even published in Vakyartha Bharati also our earnest request that let us all standardize it, so that like people are easily recommending Beethoven and Mozart for music therapy. Vedic chanting is a music therapy. In itself is better than music therapy. On a sole domain it works which we cannot use science. But we are using whatever little science can use. We are also doing some artificial intelligence. We have a professor in University of New South Wales. He is the top 2% scientist in the world, and he got recently in Nature journal he published about Bhagavad Gita and Upanishads, which is very difficult to publish in a medical journal. So with a small introduction I would just begin today's topic. We have totally I think the pages, there are 22 pages. I will not be able to speak in 15 minutes, so I will request blessings of all elders that I try to speak properly in few minutes. First, Anuradha ji mode. Anuradha ji ka prerna, bas. And most importantly, I am grateful to Renuka ji and Shri Narendra Avasthi ji for the opportunity. I would not have come here if it was not for their direction. So first of all, my Gadi will not start without invocation to Ma Saraswati. I will make a small prayer. Hari Om. Vedaye Vedarupaye Vedantaye Namo Namaha Gunadosha Vivirjanye Gunaditye Namo Namaha Sura Sevita Pada Pankaja Hare Virajat Kamaniya Pustika Virincha Patni Kamalasana Sthita Saraswati Nrityatu Vachi Me Sada. Next slide, please. So this, my talk will try to cover these 5 or 6 points. First one is symbolism in the Veda, that has been dealt by everybody. I will not go too deep in that. Next is Vedic Saraswati, the river and the mother. Saraswati of Purana, Saraswati of Veda. Is there a difference? Next would be 3 approaches. This is from Sri Aurobindo's book, The Mother, where he has beautifully described about the powers of the mother and also how we can approach. And the next is, like the powers, 4 powers of the mother. I am a mechanical engineer. When you have power source, how do you use the power source? Practical application thought comes in. We cannot use that mechanical engineering science for what is the Vedic knowledge. So what should we do after knowing? Can we control the powers?
Or is there something else? And then the way forward. Next slide, please. So symbolism of the Veda, the central conception. Sri Aurobindo has also beautifully said, and so many of the great Vedic scholars today spoke about how it is about this conquest of truth. Not like how Western scholars said, fight between white-skinned and dark-skinned people. It is light and darkness. It has been wrongly interpreted, creating Aryan dividend myth and all of those unnecessary things. But if you look at it deeply, you can identify. It is also what? The conquest of immortality. This is very difficult to understand, like so many Adhyatmic things are difficult. Like we have Ramalinga Swamigal who dematerialized. From the south, he has attained what we call the light body. His marg is a Satyasan marg. Sri Aurobindo is about supramental transformation, material transformation. Savitri says, matter shall reveal the spirit's face. Can we see matter in spirit's face? In matter also we are not seeing spirit in people. What's the use? So when will we understand? But this concept is very deep in Veda. It has been clearly mentioned. Western misconceptions, I think some of the professors told, let us move ahead. So I will also move ahead. I will not talk much about it. We all know West has done some wrong. They have done some good. We'll use what is good and probably move ahead. The motive of concealment means all of these devas. Indra means the illumined mind. Sarma Devi, she is the hound of the heavens, but she is also in the darkest caves. We talked about Vidya and Avidya, the light and darkness. Sarma Devi is that hound who is going into the subconscious cave, in the dark caves. Just imagine like the jaws, powerful jaws summoning light, pulling light and manifesting in the darkness. Or if you see like Upanishads, Hiranmayena Patrena Satyasya Apihitram Mukham. This symbolism of concealment of truth is always there. We cannot say it is just on the surface. We have to see what is concealed also. And this is very common in all Sanatana scriptures. That is why Bhagavad Gita, Raja Vidya, Raja Guhyam. Why is it Guhya? It is an open secret. But open secret nobody sees, no? It is on the outside, nobody wants. So it is there in the Veda. That is why we need Sri Aurobindo's secret of Veda. We need a direction to move ahead. Next slide, please. So, yeah, now just Mother Saraswati is so special in the Rig Veda. Sri Aurobindo himself has said, among all the devas, special in the sense all are special, but Mother Saraswati's symbolism could not be concealed even in Rig Veda. What is the role of Mother Saraswati in Rig Veda is also the same role. We see that in the Upanishads also. We also, everywhere we invoke Mother Saraswati because she is the goddess of learning. And if you see these two symbols, on the left you can see what is the Pegasus with the beautiful wings furled, and there is a river. Another side there is a river of Mother Saraswati. The Vedic description, if we have a Saraswati Sukta, I will not deal it in because I have a lot of less time, so it is there in the paper, we can study that. But in that Sukta we are beautifully seeing how the river's flow is there, and Sri Aurobindo has used philological roots to identify the symbolism between even the Pegasus. If you see, Greeks worship the Pegasus as by poets he is worshipped because this is the gift of the gods which descended onto the mortal earth. The hoof of this Ashwa, the Pegasus, touched the foot of the rock, what we call the Helicon mountain, and then a river, which is I think Hippocrene, that river originated. So this river is not just a physical river, it is the river of inspiration. And that inspiration must also flow through all of us, and that is Saraswati. Next slide please. If you see, there are two shlokas, which I am not able to very see clearly, but if you look at the meaning of it, it is about how Vasishtha Rishi opened the doors. If somebody wants to take literally meaning, which they might even ask for building plan approval, which door is open. This is not what we are talking about, these are internal doors, like Tamo Dwara. No, it's okay, I can continue. That's fine, this is just one slide, I'll have to. This, it is always there, it is there in the book also of the conference proceedings, you can look at it in detail. If you see the two shlokas very clearly talk about how Saraswati, Sarasvati, she flows, she is the inspiration. You remove this inspiration of Mother Saraswati, will not be able to move ahead, and Vedic Rishis have also identified that only. It is not that they are suddenly thinking Saraswati is powerful like a metallic fort, she is to give me ashray. They are not doing swimming if they are asking ashray, they are actually asking for grace. Please go to the next. The three approaches of Sri Aurobindo. In the book, the Mother Sri Aurobindo has described how we can approach the Divine Mother. If you see, there are three. Number one is the transcendent, original, supreme Shakti. Approaches in the sense, the ways. Nowhere is Sri Aurobindo saying my way is only correct or this way is only correct, so it is up to us to choose the way. One is looking at Mataji as the transcendent and the divine Shakti. The second is the universal. And third is the individual.
So which is connecting with you, you can choose, but these are the general approaches which can be had. Next slide please. 4 powers. These are the 4 powers that Ma Saraswati, the Mother, Divine Mother, she is manifesting as 4 powers, as Sri Aurobindo has beautifully described that. I was very blessed to be able to, because of this conference, to study about these 4 powers. I am very happy that I think I got a chance to study here. Renuka ji gave me this topic and so happy. It was something, what Sri Aurobindo has described is how are these powers, because even after that in the Upanishad when we talk about, we say Hiranmayana Patrena, then who is going to give that Satya Dharma? We are asking for Satya Dharma from the divine only, from Poshan only we are asking, and after seeing Yatte Kalyanatamam Tatte Pashami, after I can see, then I can say Soham Asmi. If I don't see divine everywhere, without Vibhuti Darshan there is not going to be any Vishwarupa Darshan. So first thing about this is recognizing the powers. Look at powers, they are Maheshwari, Mahakali, Mahalakshmi and Mahasaraswati. If you want 4 words, Maheshwari is vast, the wisdom, it is like that. Mahakali, we don't need to be told much about, we try to run away from her force, it's powerful, it's punishing, not sparing, little bit imperfection also she doesn't forgive. She is very sharp. Mahalakshmi, there's Vilasini, you can say she is the one who is spreading harmony. Means everywhere disharmony is there. We go anywhere, in our homes there is disharmony. Dialogue, you meet a stranger, you might see harmony or disharmony. What is it? These are forces at play. Gita talks about Prakriti and Prakriti working through gunas. The gunas are the same. These are the forces of the Mataji's forces at play. We have to become conscious. And then there is Mahasaraswati. She is considered, Sri Aurobindo says she is the youngest of the 4. She is closest to human beings. And she is working. She also has a lot of patience. She has to work with a lot of imperfection of Manavi Swabhava. So next slide please. I have just made some photos which are using some tools to develop, just to get a perspective. If you see, this is Maheshwari's, just a artistic rendition. I would not say anything. Nobody should feel offended. I am not trying to disturb anybody's view. So, Ma Amba Lalita Brahmananda Sagari, she is like that. Namastasya, Namastasya, Namo Namah. Means how? Like if you see in Aditya Hridaya, we say, Rashmimantam, Samadhyantam, Devasura Namaskrutam, Pujayami Vivasvantam, Bhaskaram Bhuvaneshwaram. It is like that. So vast. She is opening the doors to what they call supramental firmaments. We don't understand it, it is so vast. We may go to the next one, due to shortage of time. Mahakali, Brahm, Reem, Room, Bhairavi, Bhatri. She is powerful. Ram, Cream, Kum, Kalika Devi, but also Sham, Shim, Shumya, Shubham Kuru. Meaning she is also loving. Who can feel the love of Ma Kali? आभार आपने मुझे यहाँ बुलाया तो सम्मानीय विद्वान यहाँ विराजे हुए हैं और समारोह में आपने बुलाया। मेरी कठिनाई ये है कि न तो मैं विद्वान हूँ न संस्कृत का ज्ञाता हूँ। ये वही है कि अंग्रेजी में अरबिंदो राशि को बहुत पढ़ा, उनके आश्रम में 3-4 बार गया, एरोविल में गया और उनकी एक पुस्तक है वेद पे, वो भी पढ़ी। The Secret of the Veil. हाँ, एक दृष्टि से यह है कि मैं विद्वान नहीं हूँ, इसलिए इस सभा में मेरी उपस्थिति भी शायद आवश्यक नहीं थी। दूसरा पहलू है कि इससे मुझे लाभ भी है कि कुछ ऐसे सवाल जो आप विद्वान नहीं पूछेंगे तो मैं पूछूंगा और आवश्यक है कि वेद और उपनिषद की विशेषता थी। उस वक्त खुली चर्चा होती थी, सवाल पूछते थे, तो तुषारा इसी पे। मुझे ऐसा लगता है कई बार चर्चाएं बंद हो गई, कोई बात हम बार बार दोहराते रहते हैं। तो प्रश्न, सबसे पहला मेरा प्रश्न ये है कि आप वेदों को सारे विश्व में पहुंचाना चाहते हैं, सिर्फ मंत्रों से पढ़ के आप पहुंचा सकते हैं? आप ज्ञान आवश्यक है, मंत्र आवश्यक है,
उनका बहुत महत्व है, पर उनका क्रियान्वयन कैसे हो, जीवन में कैसे उतारे, आज की क्या समस्या, उनके लिए वेदों का क्या अवतार है। आज बौद्ध धर्म की बात देखिए आप, याद आपको शायद जानकारी है कि नहीं कि सबसे ज़्यादा बढ़ने वाला धर्म अमेरिका में वो बौद्ध धर्म है। कारण यह है कि बौद्ध धर्म आज की समस्याओं का जिस तरह प्रस्तुत किया, बौद्ध धर्म को विद्वानों ने आज की समस्याओं का समाधान है। जैसे वहाँ बहुत स्ट्रेस है और ध्यान कहा गया उसमें। आज की समस्या है और विशेष रूप से युवा पीढ़ी वहाँ कैसे पूछा है, तो विद्वान है और कम लोग हैं जो युवा हैं यहाँ। आप थोड़ा सोचो कि बच्चों तक क्या है उनकी रुचि, कैसे जगाया आप? सिर्फ मंत्र का उच्चारण करके पहुंचा देंगे आप? तो ये सबसे पहले मेरा ये बिंदु है कि इस पे आप सोचो कि अगर आप विश्व में फैलाना चाहते हैं। दूसरा एक बिंदु है कि सामान्य धारणा है कि वेद जो है वो तो सिर्फ कर्म कांड है, अभी तक भी देख रहा था। अरविंदों ने क्या कहा, उनके गहरे आध्यात्मिक अर्थ है। इस पक्ष को कैसे बढ़ाया, उसके बाद उपनिषद आए, फिर कर्म कांड ही नहीं गई, नाम ही नहीं है। तो वेद और उपनिषद वेदांत तो दोनों को साथ आगे कैसे ले जाया, मेरा ख्याल उसमें ज्यादा सफलता मिलेगी। एक मेरा संबंध जागीरदार सर जागीरदार साहब से है, साक्षी ट्रस्ट से है। जी। इनका जो कार्य इतना सुंदर काम हुआ कि ऐसे कोई बात दोहरा रहा हूँ आपको कि आज आधुनिक स्थिति में अगर आप वेदों को बढ़ाना चाहते हैं तो सिर्फ परंपरागत अनुवादों से ये संभव नहीं होगा। आज की आवश्यकता है एक तरफ विद्वान हो और एक तरफ वैज्ञानिक हो, और दोनों साथ मिलकर काम करें। अब जब मेरे पास ये प्रस्ताव आया तो मैं दंग रह गया। पर्ड्यू यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर और साथ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एक्सपर्ट, तो अंतिम छोर का विज्ञान भी नहीं, वो उसका अनुवाद करे जो आज की वैज्ञानिक भाषा है उससे नज़दीक होगा, ज़्यादा लोगों को समझ में आएगा। तो उनका हिंदी में अनुवाद है, मैंने कहा हम छाप देंगे। प्राकृत भारती तक 535 किताबें छाप चुकी है, जैन धर्म, हिंदू धर्म, मुस्लिम फेथ पे भी, जो हमारे धर्म के विपरीत नहीं हो, अहिंसा के विपरीत नहीं हो और चीज़ों के विपरीत नहीं हो, बौद्ध धर्म पे तो मेरा बिल्कुल छापेंगे। और इसकी विशेषता ये है कि आज की आधुनिक भाषा में और जो पुराना जो तरीका था तो उनका बहुत गहरे आध्यात्मिक लिया। मेरा निवेदन है कि मुझे आश्चर्य हुआ, एक बात मैं आपको कठिनाई की बात बताऊं कि कहीं एक सम्मेलन हुआ, पेपर पढ़ा कि भारतीय ग्रंथों में
विज्ञान, और एक भी वैज्ञानिक नहीं था उसमें। तो अब मंत्र पढ़ के ही आप सबको बता देंगे कि कौन मानेगा आपकी बात? आप अपने आप संतुष्ट हो जाएंगे। मैं कुछ कठिन सवाल पूछ रहा हूँ आपसे, चिंतन के विषय है। अब एक वैज्ञानिक, ऐसा हुआ लोग संस्कृत के भी ज्ञाता थे ऋषभ साहब, तो वैज्ञानिक और संस्कृत का ज्ञाता, और आधुनिक दृष्टि से उन्होंने अनुवाद किया और कहा कि इसके बहुत गहरे आध्यात्मिक अर्थ हैं, सिर्फ ऊपरी सतह पर मत जाइए। तो इसकी आवश्यकता है, मैं आपसे निवेदन लिए करूँ, इस पर आप चर्चा करूँ, और ख़ास तौर से बच्चों तक कैसे पहुँचो। अब आपने मुझे समझा भी दिया, बहुत सारे लोगों ने समझा भी दिया, चले जाएंगे, मैं जल्दी जाऊंगा, आप थोड़ा लेट जाओगे। नई पीढ़ी के लिए क्या कर रहे हैं आप? भविष्य क्या है? सिर्फ भूत में रहना हिंदुस्तान की सबसे बड़ी समस्या क्या हुई? हम इतिहास की बात करते हैं, भविष्य का है। मैं समझ रहा था कि आप यहाँ एक चर्चा करेंगे युवाओं तक कैसे पहुँचे, आधुनिक भाषा में उनको कैसे प्रस्तुत करें, आधुनिक समस्याओं का इसका क्या समाधान है, चर्चा इस पर होनी चाहिए। सर मैं निवेदन करूं, इसमें एक तो पहली बात तो ये कि यहाँ जो उपस्थित लोग हैं उनमें से मात्र 10% लोग जो हैं वो संस्कृत के विद्वान या संस्कृत के विद्यार्थी हैं। शेष सभी या तो इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, हाँ वैज्ञानिक हैं। तो इनमें से कोई भी यहाँ जो बैठे हुए लोग आपको दिख रहे हैं उनमें से संस्कृत के विद्यार्थी मात्र 10% हैं। और दूसरी बात सर, इतनी ये 1.5 दिन से इसी विषयों पर चर्चा चल रही है कि कैसे इसको युवा पीढ़ी और कैसे इसका विकास किया जाए, विस्तार किया जाए और दैनिक जीवन में बहुत अच्छा ये पूरा यही हो रहा है सर, यही हो रहा है सर कि युवा पीढ़ी तक कैसे पहुँचे जी, आधुनिक भाषा में इसको कैसे प्रस्तुत करें। और तो मेरा निवेदन आपसे ये है कि आप यहाँ अधिकांश विराजें और सुने कि क्या चल रहा है, आपको बहुत अच्छा लगेगा। देखिए, मैं इजराइल गया, मैं तो सिविल सर्वेंट हूँ जी, लॉ एंड ऑर्डर को हैंडल किया, फाइनेंस को हैंडल किया, तो मेरा विद्वत्ता से संबंध नहीं है, तो मैं बार बार माफी मांगता हूँ आपसे। पर वहाँ मैंने देखा इजराइल बिल्कुल अद्भुत देश है सब। एक भाषा हिब्रू, उसको वापस चिंता कर दिया। कई लोग ऐसे हैं जो अंग्रेजी नहीं बोलते वहाँ, और साथ में सबसे आधुनिक विज्ञान। तो परंपरा और विज्ञान, इससे सुंदर उदाहरण नहीं है। और इसीलिए आदित्य पर छोटा सा देश, सारा मिडल ईस्ट घबराता उससे। हमारे लिए मॉडल वो होना चाहिए। तो मेरा एक तो ये निवेदन है आपसे। और आधुनिक समस्या में एक और जगीरदार साहब ने एक बात कही, एप्लीकेशन होना चाहिए। एप्लीकेशन क्या है? जैसे मैं बताऊँ आपको, अरविंदो की दृष्टि से एक आदमी बहुत प्रभावित हुए। आपने नाम सुना? अरविंद नेत्रालय दुनिया का सबसे बड़ा आंखों के ऑपरेशन वाला केंद्र है, गजब का काम है। उसके जो प्रणेता थे वो थे डॉक्टर जी कहलाते थे। उन्होंने नाम भी अरविंदो रखा और उससे बहुत प्रभावित हुए। उसकी मैंने पुस्तक पढ़ी कि संस्था के बारे में, इन्फिनिट विजन। तो वो एक आज की समस्या का एक समाधान है। इस तरह और क्या, मैंने अभी पूछा जगीरदार का साहब से, मैंने कहा वेद में क्या उल्लेख है कि सेवा करो? उन्होंने कहा कि जरूरत में था, किसमें था? आपने फरमाया था कि भला काम करो, ये करो, वेद में आपने बताया था ना? जी हाँ, अथर्ववेद में तो आज की आवश्यकता ये है कि इसका विज्ञान का, सॉरी, इसका जो
जीवन में उतारें। एप्लीकेशन। और भारत की सबसे बड़ी समस्या ये होगी, हम दोहराते रहे, मैं सहमत नहीं हूँ कि मंत्रों को बहुत याद है। हमारे, मैं जैन हूँ, खालसा बड़े भारी पंडित हैं, कैसे पंडित हैं सब याद है। और मैंने कहा उस वक्त जब ये पेपर नहीं था तो उसे याद करना जरूरी, याद जरूरी है क्या? हिंदुस्तान का सबसे बड़ा वकील हरीश साल्वे मान लो, उससे पूछो कि साहब मर्डर का सेक्शन 3002 है, उसको बोल दो, वो नहीं बोल पाएंगे। आवश्यकता क्या आज रटने की क्या आवश्यकता है भाई? आपको उसका अर्थ मालूम होना चाहिए, उसका सिद्धांत मालूम होना चाहिए। तो मैं फिर इस पर निवेदन आपसे करूं कि इसको जीवन में कैसे उतारें, उसके सिद्धांत। और अब सेवा का काम करो, आप फैल जाएगा। आज क्रिश्चियनिटी क्यों फैली? मैंने जूते खरीदे, पैसे दिए, टैग पे लिखे हो, क्या गजब का काम कर रहे हैं आप। हमारे भाइयों के मुंह पर टांगे लगा रहे और आपसे पैसे ले लें। महिला तो मेरा सारा जेवर ले जा, बुढ़ी औरत। और मैंने कहा भाई मैं क्या करूँगा कि हिंदुस्तान जाके बेच देना, लोगों को पैर लगा देना। आज मैं आपसे कह रहा हूँ कि पाकिस्तान के किसी क्षेत्र में ले जाओ, नॉर्थ वेस्ट पे भी, पेशावर और वहाँ भी गया हुआ मैं, रूरल लाइन पे गया हुआ, सबका सम्मान है। तो एक तो ये कि आप प्रैक्टिकल काम करें, ऐसे ऐसे बिंदु निकालें कि जो जीवन से जुड़े हुए हों। सॉरी मैं बार दोहरा रहा हूँ, इसलिए मुझे तकलीफ है कि आज वो हम नहीं कर रहे। फिर मैं आपको, मैं सिद्धांत पे तो बोल नहीं पाया, जानता नहीं हूँ। और अब एक और भी निवेदन कर दूँ आपको कि हम उपनिषद भी प्रकाशित करें, और यहाँ तक कि धाराशिकों का जो अनुवाद है जी सर, उसको भी हिंदी में करवा रहा हूँ मैं। तो आप सबको पुनः बहुत बहुत सर धन्यवाद। मैं सिर्फ इतना सा निवेदन करना चाहूँगी कि आपने जो जो चिंताएं व्यक्त की हैं उसी पर अब काम हो रहा है। और आने वाले समय में ये जो लिविंग वेद की धारा शुरू हुई है, तो हम आशा करते हैं कि 1, 2, 3 साल में आपको इसके बारे में और नई चीज़ें सुनने को मिलेगी। खास बात वही है, और ये उन्हीं लोगों को जोड़ने का काम है जो कि आप जैसे कह रहे थे, इंटेलेक्चुअल्स, वैज्ञानिक, बौद्धिक लोग और बच्चे और युवा, बच्चे और युवा। सुनिए, बौद्धिक तो बहुत हो गए, हिंदुस्तान की समस्या ही बौद्धिक। अरे बौद्धिक तो आवश्यक है ही जी, उससे आगे जाना बौद्धिक को तो सभी के साथ मिलकर काम करने का ही प्रयास है सर। और आने वाले 2-3 सालों में आपको और उसके ठोस परिणाम देखने को मिलेंगे, और हम बहुत गर्व से आपको उसका निवेदन करेंगे और बताएंगे सर। जी आप पधारे सर, आपका बहुत आभार। इस उम्र में इतनी ठंड में निकल कर आना और समय पे पहुंचना और इस समय बैठना, सर बहुत आभार। मैं उत्तर ये देता हूँ जी सर कि मैं अमेरिका 4 महीने पहले अकेले गया, 18 महीने पहले पैलेस्टाइन गया जहाँ लड़ाई चल रही है, लड़ाई की 2-3 महीने पहले अकेला गया, 450 रुपये पहले। और मैं रेगुलर जाता रहता हूँ। 85 years young gentleman, 89 years young, Running 89. running 89। मन का कोई अर्थ नहीं है, जी जी वो तो संख्या है। जी थैंक यू सर। थैंक यू सर। भारती से पब्लिश हुए हैं, देवेंद्र दत्त शर्मा। सुनिए, इसमें सही बोलो, आप विद्वान हो, सही बोलो। ये पुस्तक साहब सारा एफर्ट डॉक्टर साहब का, ये साक्षी ट्रस्ट का, हमारा तो सौभाग्य है कि इन्होंने कहा छापो। मैंने कहा भाई सिर्फ हिंदी में नहीं चलेगी, तो संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी तीनों में। जी सर। इसके 15 वॉल्यूम हमने छाप दिए, ऋग्वेद पूरा हो गया, उसके साथ 2 किताबें, ऋग्वेद क्यों पढ़े और ऋग्वेद की मूल तत्व, अथर्ववेद का अनुवाद हो गया,
अखबार तो आपने पहले ही करवा दिया हिंदी में, जी और इसको छपने में भेज रहे हैं, छप भी गया उसकी फिगर। और जनवरी 2025 तक 26 वॉल्यूम, करीब 16-18 हज़ार पेज ये छप जाएंगे। तो एक तो मैं ये निवेदन करूँगा कि एक सेट अभी जो यहाँ लाए हैं वो यूनिवर्सिटी को डॉक्टर भारती की तरफ से जरूर प्रस्तुत है, और साथ में उसका जॉइंट पब्लिकेशन है। जी, तो सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूँ, ये भी क्या हमारा जॉइंट प्रेजेंटेशन है। जी और जब पूरे हो जाएंगे तो पूरे मैं सेट आपको भिजवा दूंगा। बहुत धन्यवाद सर। समय की सीमा असल में बढ़ गई है काफी, तो मैं फिर भी मैं चाहूंगी कि हम 15 मिनट का एक ब्रेक जरूर दें। हमारे बिस्सा साहब हैं, जी 2 मिनट आप बोले तो अच्छा नहीं, बिस्सा साहब अगले सत्र की अध्यक्षता करेंगे सर, आप ही की तरह। है। पर मेरे सामने कुछ बोले। अच्छा, चैप्टर के अध्यक्ष भी हैं। ये तो एक प्रशासनिक आपका इंट्रोडक्शन है, लेकिन उसके अलावा आप योग, दर्शन, विज्ञान, साहित्य, संस्कृति, हिंदी भाषा सभी के विषय में बहुत गहरी रुचि रखते हैं, और अध्यात्म में आपकी बहुत गहरी रुचि है, और अपने जीवन में, प्रतिदिन के जीवन में उसका पूरा अभ्यास करते हैं। आप आपकी उस छवि से ही देख पा रहे होंगे कि आप एक पूरी तरह से अनुशासित और आध्यात्मिक व्यक्तित्व है आपका। तो हम सर कृतज्ञ हैं कि आप यहाँ पधारे हैं, और आप सर आपसे भी कुछ सुनना चाहते हैं तो 5 मिनट सर आप। बहुत बहुत धन्यवाद रेणुका जी। आपने जो बातें कही है, संस्कृत के विद्वान जानते होंगे कि जब किसी के सामने उसकी तारीफ की जाए तो उसको और बैठना नहीं चाहिए। बड़ा श्लोक है जिसमें कहा जाता है कि उसमें कान बंद कर लेना चाहिए, सुन लिया तो फिर उसको चले जाना चाहिए, जा नहीं सकता यहाँ से लेकिन। सो आदरणीय D.R. मेहता साहब, आपने जो कही भारतीय प्रशासनिक सेवा, ये कोई विशेष बात नहीं है। सर ने तो लिखना ही बंद कर दिया है आजकल, जब से ये IAS लिखना बंद कर दिया है सर ने, IAS लिखना बंद कर दिया है, हम जैसे लिखते हैं अब तक। सो ये बहुत महत्वपूर्ण बात नहीं है। बात यही है कि सर ने जो कही है बात, जो सेवा की बात कही है और जो सॉफ्ट पावर की बात कही है, जहाँ जहाँ भी जाते हैं वहाँ पर यहाँ के भगवान माँ विकलांग सहायता समिति के, प्रागत भारती के नहीं बल्कि देश के कार्य बोलते हैं, और वो रियल अपनी जो सॉफ्ट पावर होती है। अब वहाँ पर जब पाकिस्तान में पैर लगा रहे थे, मेरा संबंध, मैं ऑनररी चीफ एग्जीक्यूटिव भी हूँ संस्था से, और OTS में पढ़ाता हूँ पिछले 12 साल से। वहाँ पर जब गए तो लोगों के पैर लगाए, तो एक जो मेजर रैंक के व्यक्ति थे आर्मी के, पाकिस्तान के, उनके दोनों पैर लगाए। दोनों पैर लगाने के बाद उनको पूछा, उन्होंने सही जवाब नहीं दिया था, सही अपना परिचय नहीं दिया था। बाद में आकर के कहा कि सर मैंने अपनी सही जवाब नहीं दिया था, मैं आर्मी में मेजर था, और मेरे ही जो पैर कटे हैं जो आपकी टोपों से ही कटे थे करगिल में। तो सेकंड पेपर में आया, वो फोर चॉप्ड हिज लेग्स, समिति गिव अवे। आप कौन हो? मैं सॉर्ट कर दिया था। मुझे लगा कि वो सही नहीं दे रहे हैं, पर हमारे पैर लगाने थे। 2 दिन बाद फिर आए, मैंने कहा कैसे आए, पैर ठीक नहीं लगा? नहीं साहब बहुत अच्छा है, चल के आया हूँ मैं दोनों पैरों से, बिल्कुल बगैर लगी। फिर कैसे आए कि साहब उस दिन सही नहीं बोला। क्यों कि साहब आप तो हिंदुस्तान से आए हो, मैं तो पाकिस्तान का फौजी आदमी हूँ, मैं आपको बता दूँ फौज का हूँ, आप पैर नहीं लगाओगे। मैं कहा मैं फर्क नहीं पड़ता। फिर बोला साहब आगे और बताओ, मैं तो कारगिल में आपकी फौजों के सामने लड़ा और आपकी तोपों ने मेरे पैर उड़ा दिए। पीछे एक अखबार वाले बैठे थे, मुझे ध्यान नहीं था। नेक्स्ट डे पाकिस्तान के अखबार में खबर छप गई कि देखो ये, लुक एट दिस आयरनी, these Indians had his leg chopped off, now these Indians have provided him legs. वो जो इंडियंस की जो ये, इससे क्या सॉलिडरिटी इतनी बढ़ती है, सद्भाव जो बढ़ता है देशों में, ये सद्भाव बढ़ने का एक कारण रहता है।
लैंग्वेज भी ऐसा ही कांड रहता है, बहुत सारी चीज़ें। तो जो वैसे तो आपने अधिकारी की जो बात कही है, सब जानते हैं कि देखिए सबसे ज़्यादा दुनिया में करुणाशील व्यक्ति हिंदुस्तान के सब जानते हैं। उसको हम आगे कैसे बढ़ाएं, उसका आधार वेद उपनिषद और ग्रंथों को कैसे बनाएं, तो उसमें अगर आप आगे बढ़ोगे तो जैसे स्पिरिचुअलिटी बढ़ी है इस तरह साहित्य आएगा और बढ़ेंगे। सर हम ये वादा करते हैं कि हम आपको निराश नहीं करेंगे। आपकी इच्छा कैसे सुना देता हूँ। सर ने जो आपको कही है सभी जो कार्य करने की, यह जो ऑफिसर्स आते हैं, जो इंडियन सर्विस ऑफिसर जो आते हैं ऑफिस पढ़ने के लिए, उनको समिति विजिट करवाते हैं, उनको भी कहते हैं और वर्किंग ऑफिसर्स को भी कहते हैं, हम ये बताते रहते हैं। क्योंकि केवल ऑफिसर होने से आपने जीवन भर 30 साल नौकरी करी, 35 साल करी, किया क्या? तो एक शेर है जिसको बहुत सर को भी दोहराते हैं, मैं भी कहता हूँ, हाल ये अजदाद सुन क्या क्या करिश्मा कर गए। दादाजी ने पुरखे, सरकारी पुरखे होते हैं ना, 1 2 3 लिखे रहते हैं। हाल ये अजदाद सुन क्या क्या करिश्मा कर गए, पैदा हुए नौकर हुए, नौकर हुए, पैदा हुए, नौकर हुए, पेंशन मिली और मर गए। तो कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो उसके अतिरिक्त कार्य कर गुजरते हैं। At the age of 89 he is doing in that way actually. This is great. बहुत आभार सर, बहुत आभार। हम बहुत कृतज्ञ हैं सर, बहुत आभार। सूर्य प्रताप जी ने 12 बजे का कहा था, 15 मिनट का ब्रेक। सर जी बिस्सा जी का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ, और इनका संक्षिप्त परिचय रेणुका राठौर जी मैडम ने दे ही दिया है। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय श्री अरविंद समिति एवं साक्षी ट्रस्ट बेंगलुरु के तत्वाधान में लिविंग वेद श्री अरविंद के आलोक में वेद की आधुनिक व्याख्या विषय पर चल रहे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के आज द्वितीय दिवस के सेशन तृतीय, जिसका शीर्षक है वेद प्रकाश, में आप सभी का स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। पहले वक्ता के रूप में श्री पुट्टू परशुराम कुलकर्णी जी को मैं आमंत्रित करती हूँ। सबसे पहले थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय मैं देना चाहूंगी आपका। आप कर्नाटक के एक पुरस्कार विजेता बहुभाषी कवि और पत्रकार हैं। आपके नाम कई कविताएं, पुस्तकें संस्कृत से अनुवादित हैं। आप श्री अरविंद सोसाइटी बेंगलुरु से प्रकाशित कन्नड़ में मासिक पत्रिका अखिल भारत पत्रिका के संपादक हैं। आप बहुत से पुरस्कारों से पुरस्कृत हैं, जिनमें अखिल भारतीय साहित्य परिषद कर्नाटक से आदि कवि वाल्मीकि अवार्ड 2022 से आप सम्मानित हैं। 2021 में आपको महोपाध्याय अवार्ड से भी अलंकृत किया गया है। ये बहुत ही आपका संक्षिप्त परिचय है, और जो मैंने आपका परिचय पढ़ा वो बहुत सारा है, वो मैं अभी नहीं वो सब सबके पास है, चुका है, सबके पास है। जी सर। या देवी सर्वभूतेषु चिद्रूपेण संस्थिता नमस्ते सै नमस्ते सै नमस्ते सै नमो नमः। In Bhagavad Gita first sloka itself is there, dharma kshetre kurukshetre, because it was started by Dhritarashtra. If you close your eyes, dharma kshetre kurukshetre, but Sri Aurobindo after synthesis of yoga indicates that kshetre kshetre dharmam kuru, kshetre kshetre dharmam kuru. So on that basis only I wish to exchange my few ideas about my paper. Paper is already presented and printed also. So synthesis of yoga, we know the Tridosha Jataka Pala or Triguna, whatever it may be. We know the three stages of our nation. First one is Prativya Sagara Paryantekarat. Map is there here in entrance. Prativya Sagara Paryantekarat, that's like a continent. But in second page, it is decreased to the Asetu Himalaya and called as the Hindustana. You see in minute from Central Asia to eastern side, that is the Turkestana, Balochistan, Afghanistan, then Hindustan. That is the administrative dimension of our nation is there. In the third state, it is called as the India. You see the geographical condition. The right shoulder is already cut. The left shoulder is hanging, and upper side is tornado, and down side is
symptom of gangrene is there, and it is a bonsai state of our nature. Unfortunately, we are in India thinking about Bharata. We must think because our knowledge is in Bharata only. So we are forced, our roots are cut. We are forced to follow blindly to install the hegemony, white hegemony of illusion of eugenics. सत्संतान की वाद के नाम से जो श्वेत पारंपरिक को जो है ना वो इम्प्लीमेंट करने के लिए हम सबको रूट आफ्टर कटिंग द रूट्स, यस वी आर इन इंडिया बट वी नो our roots, our essence are in Bharata only. So Sri Aurobindo indicates about this one. My paper is synthesis of symbolism. So connected to this means synthesis of a yoga is already attended by Sri Aurobindo. That means after combination of all yoga and combination of new meaning of yoga, Veda Rahasya, everything is there. So ये मक्खन के लिए जो मंथन करता है ना वो छात आने से छात में मक्खन आ जाते, मक्खन आने के बाद भी छात को मंथन करे तो मक्खन भी बर्बाद, छात भी बर्बाद। और सिंथेसिस ऑफ योगा के बारे में और वेदा के बारे में we are churning, we are still churning, we have been churning, but what is the result? We know synthesis of yoga, everything. Sri Aurobindo already provided the butter, मक्खन तो दिया है उन्हें, हम उसे घी करना है ना, और घी करने के बारे में सोच एक सिंबलिज्म के बारे में मैं सोचा। So synthesis we are quarreling, we are worrying, we are struggling about my symbol is great, my symbol is greater, my symbol is greatest. But we see all isms, all wars based on this particular war between the symbol only. So when it is already studied, when it is already analyzed, and when it is already interpreted by several thousands of years ago, till और धन्यवाद इस प्रकार का सुअवसर मुझे उपलब्ध करवाने के लिए। मैं अत्यंत अल्पमति हूँ आप सभी विद्वज्जनों के मध्य, और जो विषय मैंने लिया है उसमें प्रयास मैंने ये किया ये खोजने का कि कैसे श्री अरविंद अन्य सभी चिंतकों और विचारकों से विलक्षण थे, अद्भुत थे, क्या नया था और ऐसा क्या नवाचार उन्होंने प्रस्तुत करने का प्रयास किया कि हम सब उन्हें पढ़ें, जानें, सुने, इतनी बड़ी बड़ी गोष्ठियाँ करें, इतना रिसर्च करें। तो अंत में थोड़ा बहुत पढ़ के जो मुझे बहुत ज़्यादा समझ में आ गया वो मैं कुछ बातें आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि व्यक्तित्व का विकास ही उन्नति का निकष हम लोग मानते हैं। तो व्यक्तित्व कैसा, सामाजिक, दार्शनिक, राजनीतिक, व्यावहारिक, किस प्रकार का व्यक्तित्व, तो उस व्यक्तित्व को बताते हुए श्री अरविंद कहते हैं कि व्यक्तित्व सामान्य चीज नहीं है, लेकिन उसमें 4 तत्व हैं, चतुर्विध आयाम श्री अरविंद उसके बताते हैं कि वंशानुक्रम और वातावरण, ये हम प्रायः पढ़ लेते हैं और जान लेते हैं कि यही मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत है और यही व्यक्तित्व का प्रमुख तत्व है। पर अरविंद कहते हैं कि चतुर्भुज अवधारणा ही प्रमुख रूप से व्यक्तित्व को परिभाषित करती है, और वो चतुर स्तंभ हैं बुद्धि, शक्ति, सामंजस्य और कौशल। ये चारों मिलकर व्यक्तित्व बनते हैं। बहुआयामी स्तर से विचारणीय तत्व है व्यक्तित्व, छोटी सी बात नहीं है। एक बशीर बद्र जी का शेर मुझे याद आता है कि जिंदगी की रौ से हर संग आईना, हर आईने में खुद को गुनहगार देखना, हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, तो जब भी देखना बार बार देखना। व्यक्तित्व देखना है तो वो एक दृष्टि से देखा, एक पक्ष को जाना, मैं सब जान गया, ऐसा नहीं होता है, उसको कई तरीके से देखना और समझना होता है। वेदों के व्यापकत्व के बारे में ये विचारणीय प्रश्न है कि क्या सृष्टि का आदिम ग्रंथ जिसको सब स्वीकार करते हैं उसमें भौतिक तत्वों की गवेषणा की गई होगी। भौतिक तत्वों को जानने के लिए हमने वेद लिखे, मतलब वेदों का अनुसरण हमने किया है। इस लोक की संपदा प्राप्ति की ओर बढ़ाने का माध्यम तो ये वैदिक ग्रंथ नहीं ही होंगे, तो फिर ऐसा क्या वैशिष्ट्य है। भारत भूमि में समूचा विश्व, सारे लोग इस बात को स्वीकार करते हैं कि चिंतन, मनन और शोध जितना किया जा चुका वो तो लेश मात्र है, अभी तो बहुत अंदर जाना बाकी है। सायण, महिधर, उव्वट, दयानंद सरस्वती, वेंकट माधव, ये बहुत सारे मनीषी हुए जिन्होंने वेद का आर्ष किस प्रकार से जोड़ सकते हैं। छोटा सा एक विषय है कि मूल्य पर चिंतन की मूल अवधारणा का एक महत्वपूर्ण पक्ष है विज्ञान।
और नैतिक मूल्यों के बीच का अंतर संबंध। तो विज्ञान और नैतिक मूल्य कैसे जुड़ेंगे कि कोई भी वैज्ञानिक सोच की प्रकृति और विषय के अनुरूप मूल्य की खोज का अध्ययन कर सकता है, किसी भी व्यक्ति को ये स्वतंत्रता है। विज्ञान के भी बहुविध आयाम स्वीकार कर लेने चाहिए हमें। किस प्रकार से? एक दृष्टि से तो हम भौतिक जगत के सुचारू संचालन के लिए की जाने वाली प्रयोगशाला परक वैज्ञानिक परंपरा को स्वीकार कर ले कि प्रयोग करेंगे, उसका जो कंक्लूजन निकलेगा उसको हम सिद्धांत मानेंगे। और दूसरी दृष्टि से हम अंतःकरण से इंद्रियों की दिव्यता, दिव्य की अनुभूति विषयक सिद्धांत, अदृश्य शक्तियों को प्राप्त करने की खोज का विज्ञान, इस पर शोध कर लें। तो यदि हम दो कैटेगरी मान लें तो हमें क्या हानि है? दो स्तर पर उसका प्रयास उस लेवल के लोग करें, जिसको प्रयोग धर्मिता स्थूल दृष्टि से करनी है वो उधर करे, जिसे प्रयोग धर्मिता सूक्ष्म दृष्टि से करनी है वो अपनी दृष्टि से करे। जिसकी जैसी मति है उसको वैसी प्रवृत्ति कर लेनी चाहिए, उसमें कोई हानि नहीं है। तो सूक्ष्म करेगा मतलब इंद्रियातीत विषयों का विज्ञान होगा। लेकिन हाँ, ये सब संभव तभी होगा जब हम स्थूल से सूक्ष्म को, सामान्य और विशेष को, भौतिक और पारलौकिक को समन्वय करने की स्थिति में खड़े होंगे। यदि हम कट्टर बन के रहेंगे कि नहीं वो तो चीज ही अलग है, उसको हम जान ही नहीं सकते, इसलिए ये तो सब मंदमती है, तब ये नहीं हो पाएगा। और हमें वो प्रवृत्ति रखनी होगी कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, या केनेशितम पतति, ईशावास्यमिदं सर्वम, इस प्रकार के आर्ष वाक्यों को हम पचा सके, कस्मै देवाय हविषा विधेम, इस प्रकार के चिंतन दृष्टि को हम प्रवृत्त कर सके और इन सब को एक अन्वेषण परक विज्ञान के रूप में देख सके। तो श्री अरविंद का जो पूर्ण योग का सिद्धांत है, दिव्यता का सिद्धांत है, दिव्य को प्राप्त करने का माध्यम है, ये सब इस दृष्टि से हमको चिंतन करने के लिए प्रवृत्त करता है। तो इस प्रकार के कुछ विचार युग दृष्टा, क्रांत दृष्टा ही युग प्रवर्तक और पथ प्रदर्शक बनते हैं। ऐसे ही हुए हैं श्री अरविंद, और उनको फॉलो करने वाले भी एक नए एस्पेक्ट में अरविंद को देख सकते हैं। मुझे जितना सा समझ में आया वो मैंने कुछ बातें रखी और बाकी सब पुस्तक में आप देख लेंगे। अवसर प्रदान करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सचिव महोदय प्रोफेसर विरूपाल वी जंगीपाल जी पधार चुके हैं। विरूपाक्ष जी। सर्वेभ्यो नमः। मंचम अभिवंद्य उपमंचम प्रणम्य मम विषयं प्रस्तौमि। मम विषयः कदाचित् अस्माकं मुख्य विषय लिविंग वेद इत्यस्य मुख्य विषय वर्तमान समय का आवश्यकता का किमर्थं वेद विषये आधुनिक युगे वेद 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 आधुनिक जनाः नाम लघु लघु बाला तेषां पार्श्वे यदि वेद वेद इति वदामश्चेत् तर्हि झटित्येव ते वदन्ति किमर्थम् अस्माकं तु दूरवाणी हस्ते अस्ति, अस्माकं तदेव सर्वमस्ति, तदेव अस्माकं जीवनं। यदि दूरवाणी सर्वं जीवनमस्ति चेत् तर्हि वेद जीवनम् इति किमर्थं वदामि? वेद जीवनमिति किमर्थं वदामि? वेदः अपि अस्माकं जीवनस्य उत्कृष्टस्थानं कथं प्राप्नोति तस्मिन् विषये अद्य मम मुख्य विषयः महर्षि श्री अरविन्द जी के वेदरहस्य। तेषां तु ग्रन्थाः सन्ति एव, परं वेदरहस्य तस्मिन् विषये वदामि। तस्य प्रभाव सम्प्रति शिक्षायां तस्य प्रभावः कः? शिक्षा में क्या प्रभाव है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 समय वदन्ति भारतीय ज्ञान प्रणाली कदाचित् 27 अध्ययनं जातम् उत न, अथवा विभागानाम् अध्ययनं जातम् उत न, न्यूनातिन्यूनं परिचयं यदि पठामश्चेत् तर्हि परिचये वाक्यद्वयं साक्षात् वेदं प्रति नयति। साक्षात् परिचय किम उसी वैदिक शिक्षा से ही जन्म लेने वाले कौन कौन है हमारे भारत में जो वैदिक शिक्षा से जन्म लिए हैं? कौन है जिसको हम महर्षि ऋषि परंपरा में मानते हैं? कौन कौन है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति की परिचय केवल उसकी इंट्रोडक्शन के 2 पेज हमारे भारतीय शिक्षा परंपरा और वैदिक को पूरे का पूरे प्रस्तुत कर देता है लोगों के सामने। जो कि आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति में हर शिक्षा में भारतीय ज्ञान प्रणाली की बात और उसकी ध्वनि गुंजायमान है कि होना चाहिए। तो होना चाहिए तो सरल है, होगा कैसे? कहाँ होगा? राष्ट्र के पूरे राष्ट्र की रीढ़ की हड्डी क्या है? शिक्षा ही है। शिक्षा में परिवर्तन नहीं होगा, 4 दीवार के अंदर रहते हुए विद्वानों की चर्चा और प्रसंग में शिक्षा में परिवर्तन नहीं होता।
इसी बात को स्वीकार करते हुए एक अध्यापक के रूप में कि शिक्षा के प्रभाव इत्यस्मिन् विषये हम वदामि केवलं छात्राणां कृते इति न प्रथमतः तस्य आवश्यकता कस्य कृते अस्ति अध्यापकस्य कृते अस्ति अध्यापकरूपेण मम किं दायित्वम् अस्ति किम् अहं वेदस्य अध्ययनं केवलं मंत्राणां रटनं कृतवान् वा क्या केवल मैं मंत्र को रटन कर लिया हूं क्या केवल कंठस्थीकरण कर लिया हूं क्या उसको कभी आजमाया हूं क्या उसको मैंने कभी समझा हूं क्या उसको मेरे जीवन में आचरण में किया हूं यदि मैं आचरण में लिया हूं जब मैं कक्षा में जाऊंगा चाहे वो हिमालय का प्रकरण हो चाहे वो स्वामी विवेकानंद का प्रकरण हो वो वेद की बात आएगा वो वेद का प्रसंग आएगा वो वेद के बारे में जरूर कहीं ना कहीं उदाहरण और प्रति उदाहरण होगा जब मैं बताऊंगा वो हृदय की भाषा होगी वो विषय की भाषा और पाठ की भाषा नहीं होगी जब हृदय की भाषा किसी शिक्षक की होती है अपना जब हृदय होता है वही तो वेद है वेद तो एक अच्छा उत्तम नागरिक का निर्माण करते हुए एक स्वस्थ राष्ट्र को भी निर्माण करता है केवल नागरिक का निर्माण इसलिए किया जाता है क्योंकि स्वस्थ राष्ट्र निर्माण करना है तो अरविंद जी के वेद रहस्य में मैं सबसे अधिक से अधिक जो पढ़ा हूं उसके उत्तरार्ध का वेद दो भाग है एक पूर्वार्ध है एक उत्तरार्ध है उत्तरार्ध का प्रत्येक पुष्ट को पढ़ा हूं मैं उसमें से 10-20 श्लोक मतलब जो मंत्र है उन्होंने जो मंत्रों को व्याख्या की है उस व्याख्या की दृष्टि से ऋग्वेद में प्रथम में अग्निमीड पुरोहित जो अग्नि शब्द है इसी अग्नि को आपके द्वारा मेरे द्वारा जो गैस वाले अग्नि अथवा मैचिस वाला अग्नि केवल उसको स्वीकार करें मुझे तो नहीं लगता केवल उसी अग्नि की बात कही गई केवल यज्ञ में केवल संविधान में अग्नि को उसी यज्ञ की बात नहीं कही गई वो अग्नि कौन सा है वो विद्या रूपी शक्ति है जो विद्या रूपी शक्ति और विद्या रूपी जो ऊर्जा है वो ऊर्जा हर व्यक्ति के अंदर हर बच्चों के अंदर हर शिक्षा क्षेत्र में चाहे वो एमबीए करे चाहे इंजीनियरिंग करे आज के समय पर भौतिक परंपरा में हर चीज प्राप्त है लेकिन कोई भी एक व्यक्ति को पूछ लिया जाए किसी भी विश्वविद्यालय में जहां 10-10 हजार छात्र उनको पूछ लिया जाए बच्चा तो शांति में है ये क्या होता है असंतुष्टि क्यों असंतुष्टि है क्यों वो केवल यांत्रिक शक्ति को पढ़ा यांत्रिक ऊर्जा को प्राप्त किया हमारे वैदिक शक्ति के आधार पर वैदिक ऊर्जा को भी प्राप्त नहीं किया और वैदिक ऊर्जा को जो प्राप्त करेगा चाहे आज जो सा विद्या विमुक्ते इति पदम स्वीकृत्य इति सुक्तिम स्वीकृत्य अस्माकं किं चलति पूर्णतया नकारात्मक दृष्टिया चलति अरे क्या या प्राचीन परंपरा की बात करते सा विद्या विमुक्ते संप्रति तो सा विद्या नियुक्त इति पदम स्वीकृत्य कदाचित उपहासं कुर्वन्ति उपहासं कुर्वन्तः भवन्ति प्रत्येकं कक्षायां सर क्या बात बोल रहे सर सा विद्या नियुक्त होनी चाहिए विमुक्त तो गलती होगी अरे हमारे विमुक्ति की बात अंतिम में कहा जाता है लिखते हुए एक व्याख्यान किया जाता है उसी अग्नि के स्थान पर आप और हमारे संकल्पना में एक हाइपोथेटिकल यदि हम शब्द का संरचना इतना कर दे यही विद्या है इसी विद्या से सत्य को प्राप्त कर सकते हैं इसी विद्या के जैसे अभी सार ने बोले और हमने एजुकेशन में जब पढ़ाते हैं मानव से अति मानव पुरुष से महापुरुष ये पुरुष से महापुरुष बनने के लिए कौन से मसाला चाहिए वो मसाला क्या है तो पत्ता गोभी वही पत्ता गोभी को लेकर ठेला वाला बेचता है उसी पत्ता गोभी से एक ढाबा वाला भी पत्ता गोभी सब्जी बनाता है उसी ढाबा ठेले वाले से पत्ता गोभी लेकर 5 स्टार होटल वाला भी बनाता है उससे मेरी माँ और मेरी पत्नी और मेरे बहन जो पत्ता गोभी बना के देते हैं आनंद किसमें आता है माँ और बहन और पत्नी जो क्यों वो पत्ता गोभी की सब्जी नहीं बना रहे हैं मेरे जीवन निर्माण करने के लिए उसमें अपने हृदय को डालते हैं अर्थात शिक्षा स्तर में अस्माकं वेदस्य प्रत्येकं तत्त्वं स्वीकृत्य तत्त्वं नाम यह वास्तविक रूपेण तदनु पठति उसके अनुकूल जो पढ़ता हो जो केवल पढ़ रहा है ठीक है मैं टाइम पास कर रहा हूं मेरा भी कुछ काम नहीं मुझे उस वेद मंत्र पढ़ने से लोग बोलते हैं कि मुक्ति मिल जाएगी वेद मंत्र पढ़ने से नहीं मुक्ति नहीं मिलती है जैसे यहाँ तो विद्वान लोग हैं तो वेद मंत्र को केवल पढ़ने से मुक्ति नहीं मिलती है वेद को व्यक्ति जब जीने लग जाता है तब अपने आप में रोजाना मुक्ति मिलती है आज सुबह नहीं पढ़ रहा था रोजाना मुक्ति मिल सकती है प्रतिदिन मुक्ति मिल सकती है कैसे संतुष्टि मिल जाए हर चीज में संतुष्टि जो मिला ठीक है जो नहीं मिला वो भी ठीक है ये भावना का उत्पन्न करना आज के समय पर विद्यालय में प्राथमिक स्तर से लेकर उच्च स्तर पर प्रत्येक छात्रों को कहीं ना कहीं शिक्षा के स्तर पर हमें ये वेद रहस्य में स्थित जो मतलब मानवीय तत्व हो आध्यात्मिक तत्व हो एक इंटीग्रेशन के द्वारा एकत्रीकरण करते हुए इसे छात्रों को कभी इतना नहीं पता जाए बेटा तो इसलिए एमबीए कर रहा है तो नौकरी कर ले इसलिए आचार्य कर रहा है नौकरी कर ले बीएड कर रहा है इसलिए टीचर बन जाए बीएड करने से टीचर बनता है ये जो भावनाओं को हटाते हुए कि मुझे बीएड करना है कि मुझे टीचर बनना है ये भावना उसकी आना चाहिए ऐसा नहीं बेटा ये भावनाओं को हमें कहीं ना कहीं इस वेद तत्वों में मुख्य जो बातें कही गई है जो ऊर्जा शक्ति की बात कही गई है वो ऊर्जा शक्ति केवल ही केवल
विद्या परंपरा है, हमारे भारतीय सनातन परंपरा है, जिससे वो चरक, वो सुश्रुत, वो पाणिनि, वो पतंजलि, वो पिंगला, वो गार्गी सभी जन्म हुए थे, उसके बारे में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के परिचय के द्वितीय पत्र में, द्वितीय पृष्ठ में केवल 2 पेज हमें पढ़ना है, चाहे वो इंग्लिश का 66 पेज ना पढ़े, चाहे वो हिंदी का 108 पेज ना पढ़े, चाहे संस्कृत में आया हो 120 पेज भी ना पढ़े, केवल 2 पेज पढ़ने के बाद निश्चित रूप से जो वेद अनुकूल व्यक्ति हो, जो संस्कृत परंपरा के अनुकूल हो, उनके रूंगटे खड़े हो जाएंगे कि किस प्रकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति में प्रत्येक पृष्ठ पर संस्कृत की बात कही गई है और भारतीय सनातन परंपरा की बात कही गई है। तब उस प्रकार उस शिक्षक के रूप में मुझे कक्षा में खड़ा होना और उस कक्षा में मुझे कुछ किसी के बारे में कोई भी विषय हो, कोई भी प्रकरण हो, जब मैं बोलूंगा हर प्रकरण राष्ट्र के प्रति संबोधित जब हो जाएगा, वही राष्ट्र तो वेद है, वही भारत तो वेद ही है। तो मैं इतना बोलते हुए क्योंकि यहाँ टाइम आउट जाता हूँ, अतः सर्वेभ्यो धन्यवाद। आपने बताया कि पहले आप लोग कुछ प्रश्न करना चाहें तो प्रश्न करें आपसे, संक्षिप्त उसके प्रश्न। पश्चात तो मुझे 2 शब्द कहने के लिए कहा गया है। संक्षिप्त प्रश्न अगर कोई हो जी। माइक में सार गढ़कर के तौर पे दी गई। वेद ईश्वर की रचना है। अरविंद के मतानुसार क्या सच में वेद ईश्वर की रचना है तो किस अर्थ में है, नहीं है तो किस अर्थ में नहीं है? किसको ये प्रश्न है? ये आपका हाँ। नो किसको? This is for you, sir. This is for you, sir. नहीं ये प्रश्न सार्वत्रिक प्रश्न है, तो सामूहिक प्रश्न। So Arvind ki, whatever the interpretation of Sri Aurobindo connected to the Veda, we know the first Jnana Kanda interpreted by Sri Shankaracharya during 8th century or 3rd century, whatever it may be. But afterwards, due to the so many invasions and due to the so many tornadoes, yes, it was hidden. During 15th century, due to the need of the particular 15th century, the interpretation of Sayana was needed. So it is Bhakti Kanda started. But during after 20th century, during the period of Sri Aurobindo, he clearly tells that whatever the matters connecting to the Jnana Kanda which is not touched by even by Sri Sayana, I am attending this one. There is no question of Sri Aurobindo never tells that I am writing new Veda. So I am interpreting the Veda connecting to the Jnana Kanda. So Jnana Kanda which was hidden due to the Niyati, it was the Niyati. So due to the Niyati it was hidden. So I am trying to reopen this one to connect into the Jnana Kanda. You see the Agni is the first name. The Agni Sahasranama written by Sri Samadikshita of Gokarna, published during 1950 onwards from Sakshi. So after interpretation of Sri Aurobindo, several things had already happened connecting to the evolution of Veda. So in such a way, Sri Aurobindo never tells that I am writing new Veda. So instead of using the new Veda, connecting to Jnana Kanda, which was once upon a time, it was a life, it was a lifestyle. Now it is possible to regain this one, whatever see, whatever Maharshi, whatever Brahmarshi see. Yes, now it is also possible to see this one. So I already explained in that one. Agastya Muni tells about how. श्री विरूपाक्ष जी जयदीपाल जी उपस्थित हैं, मैं आपका स्वागत करती हूँ सर। और आप हमारे वैलिडिक्टरी फंक्शन के चीफ गेस्ट हैं, तो आप उस समय आपका व्याख्यान पूरा सुनेंगे। अगले वर्ष में आपको इसको विस्तार से समझा दूंगा। जी सर। And this means to get the light energy from the solar plexus of the eye catcher. When they interact together, a sort of the burning, sort of illumination of the inner part of the brain, what is known as intimate of the matter, chapter number 24 and 25, if I am not mistaken. The first assignment, all the PhD students will know, we have a credit course which is the beginning compulsory in the PhD. The first assignment given to his PhD students is to understand Sri Aurobindo, these two chapters, matter and not of the matter, because it gives a completely new field, new dimension to understanding of matter and antimatter.
Question whether Sri Aurobindo accepted the Vedas were created by the gods of the universe, eternal creation or not. Sri Aurobindo has widely accepted it. The Vedas are the creations of the Almighty. It says that the divine revelation in Savitri, Sri Aurobindo writes, it is basically the book of beings index page which was discovered by the rishis, and it clearly defines that the Vedas, the supreme shastra of the integral yoga, are the Vedas, and also Sri Aurobindo defines the foundation of the Sanatana Dharma. Vedas ought to be the foundation of Sanatana Dharma. Sri Aurobindo had also given an emphasis rather than criticizing, finding the meaning. Sri Aurobindo says the discovery and application of the Vedas, that is much more important. So, in response to the query whether it was created by the, whether Sri Aurobindo accepted it was a revelation by the god Aishwarya Prati है या नहीं, उन्होंने इसको अपने अंतर की जो Because I couldn't come yesterday. मेरा दुर्भाग्य रहा कि मैं थोड़ी सी बात में जो सुन पाया हूँ आप लोगों से जो बातें अभी, उससे मुझे लगा कि मुझे कल भी आना चाहिए था और आज भी ज़्यादा देर रुकना चाहिए था, दोनों नहीं हो पा रहे हैं। तो महाकुंभ हो रहा है हमारे लिए। तो सबसे पहले मैं बहुत बहुत आपको बधाई देता हूँ उसके लिए कि आपने ये आयोजन किया है। राजा जी को खासतौर से क्योंकि उन्होंने मुझे वापस से यहाँ बुलाया। अभी जो कुछ चर्चा हुई और जो कुछ मैंने सुना, मुझे चूँकि कोई उस बारे में कोई स्पीच तो देना नहीं है, केवल थोड़ा सा इंटरप्रेट करना है, क्योंकि मुझे ये आदेश दिया गया है। तो तीनों जो अभी आपका उद्बोधन हुए और उसका जो मुझे क्रक्स लग रहा है वो कि सबसे पहले तो मैं इसको कंसीडर कर लूँ दोबारा कि ऋग्वेद को जो इमेज और उसके बारे में जो सिंबोलिज्म की जो बात आपने कही है, ये बहुत बड़ी समस्या है। मैं समस्या क्यों है जो मैंने महसूस किया है, ऋग्वेद मेरे कोर्स में था। जब हम ग्रेजुएशन कर रहे थे तो श्री गंगाधर जी भट्ट और राम जी आचार्य साहब ने मुझे पढ़ाया और ऋग्वेद के उस सूक्त और वो कोर्स में थे, और मैं पूरी शिद्दत के साथ स्वीकार करता हूँ कुछ समझ में नहीं आया था। और फिर राजेश्वरी जी ने जब कहा कि आप ये कुछ तो याद कर लेना जो ज़रूर आएगा तो पूछेंगे, तो उनको याद किया और फिर शाकुंतल के माध्यम से हम लोग उसमें फर्स्ट ईयर में पास हुए। तो बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ऋग्वेद की जो बात है उसका जो सिंबोलिज्म है और जैसे आपने अभी बताया वो बात नहीं है, वो शब्द नहीं है जो शब्दों का प्रयोग उसमें किया गया है। और उसको समझ के लिए बहुत एक गहरी ऑफ इंडिया, उसमें बहुत विस्तार से इसका वर्णन किया गया है, दोनों आपके तथ्यों का जो मैंने जितना मुझे समझ में आया मैंने उसको पढ़ करके देखा। दूसरी बात, अभी जो ये बौद्धिक बात हुई, बुद्धिमत्ता की बात है, ये आपने सही खड़े करके और बता दें ताकि अपन बाहर चल के और खड़े होकर के अपन बाहर चलते हैं और उसको हम कितना समाहित कर सकते हैं, कितना अपने ऊपर ढाल सकते हैं। मैं तो इतना ही कहूँगा कि मैंने विद्वानों के बीच में इतनी जो बात कही है आपने सहन कर ली है, उसके लिए धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। आदर्श बालक की माता जी का वचन, आदर्श बालक शांत स्वभाव होता है। जब सारी बातें उसके विरुद्ध जाती हुई मालूम होती हैं अथवा सभी निर्णय उसके विपक्ष में होते हैं, तब भी वह क्रोधित नहीं होता। भोजन के लिए हम प्रस्थान कर रहे हैं और 2:30 बजे वापस अगला नमस्सभायै सभापतिभ्यः। अत्र सत्रे अस्मिन् मैडम संस्कृत संस्कृतमपि सर्वप्रथमं अस्य सत्रस्य अध्यक्षा भवन्ति प्रोफेसर सुदर्शन शर्मा महोदयाः, वेद विश्वविद्यालयस्य तिरुपतिस्थ वेद विश्वविद्यालयस्य कुलपतयः। तान् अहं सप्रथमं प्रार्थये सम्यक् महोदयाः अत्र सत्रस्य अध्यक्षस्य अध्यक्षपदमलं कुर्वन्तु। वयं भवतां कर्तध्वनिना स्वागतं। सूक्त और श्री अरविंद दर्शन
इस पर आप अपने विचार रखें। उसके बाद में क्रमशः हम डॉक्टर डी दयानाथ जी, श्रीमती मनीषा गुप्ता जी और स्वामी ज्ञानेश्वर पुरी, डॉक्टर योगेश करूंगी। वैदिक ऋषियों ने प्राकृतिक चेतना के साथ अंतस चेतना को गुंफित करते हुए जिन सत्यों का साक्षात्कार किया था, जिनके प्रति समर्पण भाव से परिपूर्ण होकर मंत्रों का साक्षात्कार किया था, वे प्राकृतिक उपादान उषा, सवित, मरुत, इंद्र, अग्नि आदि देवता स्वरूप थे। कालांतर में एक देवादिवाद, विश्व देवावाद और इस तरह से मंत्रों का किसी देवता के प्रसंग में मंत्रों का साक्षात्कार जो ऋषिगणों ने किया, उसके बाद जब हम देखते हैं एक दार्शनिक जिज्ञासा का प्रारंभ होने लगा था ऋषिगणों के मंत्रों में, जिसमें हम देखते हैं पुरुष सूक्त है, हिरण्यगर्भ सूक्त है, नासदीय सूक्त है, जहाँ ऋषिगणों को ये लगने लगा था कि यह सृष्टि का मर्म क्या है, सृष्टि के बारे में उन्हें जिज्ञासा होने लगी थी कि ये सब कहाँ से आई, कैसे आई, हम सब क्या हैं, यह सब क्या है, कैसे हो रहा है। और उसको जानने की जो इच्छा है या हमारी जो जिज्ञासा है वह बहुत वैलिड है, लेकिन हमारी क्षमता नहीं है, क्योंकि सृष्टि से पूर्व में हम नहीं जान सकते कि हम क्या था, और न ही हम ये जान सकते, न हम ये निश्चित रूप से कह सकते हैं कि पहले मुर्गी हुई या अंडा हुआ, या पहले जो आज दिखाई दे रहा है, जो हमें हमारी मन और वाणी से जो हम जान सकते हैं, देख सकते हैं। लेकिन मन और वाणी तो सृष्टि होने के बाद आए, तो सृष्टि से पहले क्या था। तो ऋषि की जो नासदीय सूक्त में हम देखते हैं बहुत ही गहन चिंतन मनन दिखाई देता है, जो कि ये बताता है कि हम कितने गहराई तक डूबकर हम ये सोच सकते हैं कि सृष्टि से पहले क्या था, क्या हो सकता है, क्या हो था या नहीं था, या ऐसा कुछ भी। महर्षि अरविंद के शब्दों को ही कोट करें तो बाय एनी रेंडरिंग ऑफ सच ग्रेट पोएट्री एज द हिम्स ऑफ द ऋग्वेद मैग्निफिसेंट इन हमारे दर्शनों का स्रोत, हमारे धर्मों का सुदृढ़ आधार, हमारे चिंतन का सार, हमारी आचार नीति और समाज का स्पष्टीकरण, हमारी सभ्यता का सारांश, हमारी राष्ट्रीयता को थामे रखने वाला स्तंभ, वाणी की एक लघु राशि अर्थात वेद। वैसे भी हम देखते हैं, इसलिए भी हम, क्योंकि हम जो प्राकृतिक स्वाभाविक जीवन था उससे बहुत दूर आ गए हैं। विज्ञान और तकनीक के विकास ने हमारी सोचने की क्षमता बदल दी है। हम तर्क के बिना किसी बात पे विश्वास नहीं करते, बुद्धि और विमर्श को ज़्यादा महत्व देते हैं। इसलिए महर्षि की जो बात तत्व के बारे में, एक अद्वितीय तत्व के बारे में, ब्रह्म के बारे में जो बात आती है कि अगर एक कोई तत्व था जिसने संपूर्ण को आवृत कर रखा था, तो उसके मन में कामना हुई, ऐसा आत्मानम बुधा अपातयत, उसने अपने आप को दो। तो आभु परम तत्व है जो परात्पर है, और अब उसके बाद जो सृष्टि वाला तत्व है उसे अब कहा गया है। जो एक है वह आभु है, और अब वह है जो ब्रह्म की शक्ति का अभिव्यक्त रूप है। ब्रह्म ने सोचा कि मैं इन लोगों में कैसे प्रकट हूँ, तो वह नाम और रूप के द्वारा प्रकट हुआ। वाणी से हम नाम का ग्रहण करते हैं और चक्षु से रूप का। आभु जब षड भाव विकारों आपका छपा हुआ है ना, तो सब पढ़ रहे हैं, तो ये आभु है, फिर अब है। इसी तरह से तप है, तप के द्वारा ऋषियों ने जाना क्या वह एक तत्व था, और इसी तरह से ऊर्ध्व गति, अधोगति, तिरश्चीन गति की बात कही गई है। तो संसार के पास कंक्लूडिंग, जैसे लहरें समुद्र का एक अंश है, उसी तरह से संसार ब्रह्म का एक अंश है, और इनमें कोई भिन्नता नहीं है, यह भिन्नता सतही है। और मैं ये पद तो पढ़ूंगी, इनका है शब्द ही तरंग वचन समुद्रो नहीं तारंगा। भेद दूर हो जाने पर भी जो भी सभी जानते हैं, तो अंत में एक So what is this bhu? What is this bhuva? What is this suvaha? What is this maha? What is this jana, tapa and satyam? What are these vayardis? Are they something outside? Are they within us? This question should come, and this has come, and this has come to the Vishwamitra before writing or expressing the Shruti in this fashion of Gayatri Mantra. So to answer that question, I go back
It's like this. Whenever I am traveling from this road, there was an intuition which comes to my mind कि यार ये रास्ते से नहीं, ये रास्ते से चले जाते हैं. Why? और फिर वही रास्ता मेरे लिए सिक्स सेंस सही क्यों बनता है? तो विश्वामित्र जी ने भी सोचा होगा कि ये नहीं, ये सही है, ऐसा हुआ है. तो इंट्यूशन का हाईएस्ट लेवल होता है रिविलेशन. सो व्हाट इज रिविलेशन? हाईएस्ट लेवल ऑफ इंट्यूशन. तो इंट्यूशन सिक्स सेंस कभी कभी अपना इंट्यूटिव माइंड डेवलप होता है, लेकिन आइंस्टाइन सेज योर रैशनल माइंड एंड इंट्यूटिव माइंड्स बोथ आर इंपॉर्टेंट. If you see the graph which I have taken from my book Synthesis of Revelation, which tells you in detail about मह क्या है, जनः क्या है, तपः क्या है, सत्यम क्या है, तो संहिता ये रिविलेशंस है, राइट? उसका रिप्रेजेंटेशन वैदिक ब्राह्मण है, उसका इंटरप्रिटेशन जैसे जाती है अग्नि. सोम इज द ब्लिसफुल डिसेंट, अग्नि इज द एस्पिरेशन, एंड बोथ कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अग्नि सोमामय जगत. तो यार व्हाट इज दिस जगत? अभी नासदीय सूक्तों में हमने सुना व्हाट इज दिस जगत. जगत इज नथिंग बट कॉम्बिनेशन ऑफ एस्पिरेशन एंड रिविलेशन. द असेंट इज द अग्नि, द सोम इज द डिसेंट, बोथ कंबाइन टुगेदर टू एक्सप्रेस अवरसेल्फ, एंड आई एम एक्सप्रेशन ऑफ दैट अग्नि एंड सोम, सो यू आर. So there are opposing forces which do not allow this reaction to happen. They are called as dampeners or obstacles. I have devoted one complete chapter on it, Namuchi, then Pani and the Sieus, and how they obstruct that interaction within you. And there are catalyst agents. What are catalyst agents? Catalyst agents are nothing but devas. So it is not in Tirupati the Vishnu is not there. Vishnu is within me. And extremely thankful to the great scholar of Rajasthan, Madhusudan Ojha ji. Work done by his phenomenon, the concepts of agranams. So Vishnu is as a 20-foot agranam within ourselves. Vishnu says, Vedosi Samoham. Vishnu says, at the 21st level of the consciousness I am there. So you start with third, you can say that the aspiration within you starts from Mooladhara. Tanyamai, Satyamai, Paramai. Very good. के मामले में मैं बिल्कुल ही वो बच्चा हूँ जिसने अभी अभी अनुवाद के जरिए प्लेवे को क्रॉस करके किंडरगार्टन में आई हूँ. तो ये मेरा जो अनुवाद किया मैंने, उसमें मैंने क्या जाना, एक किंडरगार्टन का बच्चा आपको कैसे फ्लैश कार्ड से समझाएगा कि उसने वेद को क्या समझा, उसके गुरुजी ने उसे क्या बताया. क्योंकि इस जर्नी में मुझे ऑलमोस्ट 1 ईयर लग गया. कोई भी ये देखेगा ना तो यही कहेगा इतनी पतली सी पुस्तक में तुमने 1 साल लगा दी. नारायण सर, श्री आर नारायण सर स्वामी जो हैं और जागीरदार सर ने मुझे पूरा समय दिया कि तुम इसको समझो. अगर किसी शब्द पे मैं अटक गई तो उन्होंने मुझे पूरा टाइम दिया कि तुम हमसे जितना मेल करो, बात करो, जितनी बार मिलो, जब तक तुम इस पे नहीं आ जाओ इस निष्कर्ष पे कि हाँ यही लिखना है, तब तक उन्होंने मुझे टाइम दिया. पर मैं ये नहीं कहूँगी कि इस अनुवाद में मैंने पूरा ही वेद जान लिया, पर इतना जाना कि इस वेद के जरिए जो हम बाहर मार्केट में जो पुस्तिकाएं छोटी छोटी मिलती हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, जो आम इजीली मिल जाती हैं, उसमें कितना गलत लिखा हुआ है, जिसको पढ़ करके हमारे जैसे युवा, मैं कभी नहीं जाती बात किया. तो अब नेक्स्ट यही है, मैंने उनको बता दिया कि वेद की प्रतिष्ठा जो हमारे भारतवर्ष में वेद की उत्पत्ति हुई और हम ही भूल गए, हमारे ही देश में विलुप्त हो रहा है. क्यों? क्योंकि युवा पीढ़ी नहीं पढ़ रही है. आप ये सोचो, जब आप एक विमोचन करते हो या आपने संगोष्ठी रखा, आप एक शकीरा का रख लो, देखो अभी कहाँ से लोग नहीं आएंगे. आप सिर्फ सुनीति चौहान का रख लो, देखो कहाँ से नहीं आएंगे. लेकिन आपने कह दिया वेद अध्ययन हम करेंगे, कोई नहीं आएगा. सिलेक्टेड लोग आएंगे, उनके बच्चे आएंगे, तो आप बाहरी युवा को कैसे, हमारे अपने देश को युवा को कैसे जोड़ेंगे? तो उनकी लैंग्वेज में, उनकी भाषा में अगर आप उनको एक फ्लैश कार्ड या सिंप्लीफाइड ढंग से नहीं समझाएंगे और एक बार कह दिया कि बच्चा ये बहुत अच्छा है तुम ले लो, वो कभी नहीं खाएगा. तो वेद, अब हम सब जानते हैं कि वेद अपौरुषेय है. क्यों है 2 दिन में, आप सब जानते हैं. मैं आगे बढ़ती हूँ, समय कम है. अब वेद हमारे देश से क्यों गया? क्योंकि वेद, आप ये कहो कि हमारा भारतवर्ष को हम कहते थे सोने की चिड़िया,
क्यों है चिड़िया? क्योंकि यहाँ शासन, अनुशासन, धन संपदा, किसी चीज की कमी नहीं थी, ज्ञान, कला, किसी चीज की कमी नहीं थी। तो जाहिर बात है जब आपके पास बहुत कुछ है तो एक जनरेशन जिसने उसको अर्जित किया उसने तो मेहनत किया, लेकिन जो नेक्स्ट जनरेशन है उसको आराम करने की आदत हो गई कि हमारे पास तो संपत्ति है, हमारे पास तो ज्ञान है, हम क्यों मेहनत करें, हमारे पास सब कुछ है। जब आप इस स्टेज, मेंटल स्टेज में आते हैं तब दूसरी दुनिया आती है आपके लाइफ में, तब दूसरे लोग आपके लाइफ में पेनिट्रेट करते हैं कि कैसे हमारे ऊपर हम उन चीजों को ले, क्योंकि आप तो आराम से बैठे हैं, आप उसको सुरक्षा नहीं कर रहे, आप उसको गार्ड कुछ कहीं से भी उसकी गार्डिंग नहीं कर रहे, आपने छोड़ दिया कि हमें मिल गया है। तो अब भारत में विदेशी आक्रमण, हम सब जानते हैं कि मौर्यों, तुर्कों से लेकर अंग्रेजों ने किया, 200 साल तक अंग्रेजों ने खासकर हमारे पर शासन किया। शासन करने वक्त उनने जो अनुवाद किया, बेसिकली अंग्रेजों का अनुवाद, मुगलों ने भी अनुवाद। धन्यवाद। अग्नि का स्वरूप। वैसे तो इस विषय पर मेरे सभी गुरुजनों ने विशद व्याख्यान दिया है, फिर भी अपनी स्वाभाविक बुद्धि से मैं जितना समझ पाई हूँ आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। वेद प्राचीन भारतीय ऋषियों के हृदय की अनंत गहराइयों से अनुभूत अंतः प्रेरणाओं से निःसृत ऋचाओं का संकलन है। वेद जिसका अद्य पर्यंत हमारे जो विद्वान अध्येता है उनकी गवेषणा का विषय बना हुआ है। वैदिक ऋचाओं का आध्यात्मिक भाष्य उनमें निहित गूढ़ ज्ञान को समझने का एकमात्र प्रवेश द्वार है, क्योंकि प्राचीन ऋतु दृष्टा संकल्प अथवा भागवत संकल्प शक्ति है। अग्निर्होता कवि कृतु सत्य चित्र स्रवस्तमः देवो देवेभिर आगमत्। अग्नि अपने आने हम जिस किसी भी पदार्थ में आनंद की अनुभूति करते हैं वह आत्मा में स्थित गुप्त ज्वाला की उपस्थिति के बिना संभव नहीं है। आध्यात्मिक संकल्प शक्ति के रूप में वह हमारी आत्मा में निगूढ़ है। ऋतावानम विचेतसम, ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल में अग्नि सूक्त में जहाँ ऋषि वामदेव वर्णन करते हैं, ऋतावानम विचेतसम पश्यन्तु द्यामी को धारण कर लेते हैं, उन्हीं के द्वारा दिव्य सत्य का स्वामी अग्नि समग्र रूप से प्राप्त किया जा सकता है। कठोपनिषद में तो परमात्मा का स्वरूप ही अग्नि है ऐसा वर्णन मिलता है, जहाँ पर नचिकेता को अग्नि के अंदर साक्षात परमात्मा का स्वरूप बताते हुए प्रस्तुत मंत्र बताया गया है। अरण्योर निहितो जात वेदा गर्भ इव सुवृतो गर्भिणीभिः दिवे दिवे इद्यो जागृवद्भिर हविष्मद्भिः मनुष्येभिर अग्निः। निष्कर्षतः वह अग्नि